Hello friends, welcome back to my YouTube channel Self Study. Hope so you all are doing well and enjoying the best of your health. So in today's lecture I will share with you tips to write perfect answers in your exams, whether the exam would be your board exam. So these tips will help you a lot in your board exams or other exams. So watch my video till last and do like, share and subscribe my YouTube channel for upcoming videos. So let's start today's lecture, that is tips to write perfect answers in your board exams. So here I am sharing my experience with you, that how I attempt my board paper when I was in class 9th metric first year or inter. So these are my tips that I am sharing with you guys. So let's start. See, no matter how well you prepare for the exam, but if you are not able to put all your knowledge in the answer sheet in the right way, then all your hard work goes in vain. Actually, it is a well observed fact that students often become nervous and anxious while sitting in the examination hall because the pressure is so overwhelming that they tend to forget what they had learned during the exam preparations, though it is natural among all the human beings. But the situation can be made easy by following a few useful tips while sitting in the examination hall and writing your paper. So here we will take a look at some tips and strategies that will help you prepare and attempt your exam in the best possible way. So the very first tip to write perfect answer in your exam is number 1, make the right use of additional 15 minutes. एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको 15 मिनट दिए जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में. उस 15 मिनट्स में आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है वो पूरा रीड करना होता है. क्वेश्चन पेपर को रीड करना होता है 15 मिनट में. उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना होता है. तो फर्स्ट टिप है कि आप अपना 15 मिनट वाला जो टाइम है वो कैसे मैनेज करते हैं. Almost all the school boards have introduced the concept of an additional 15 minutes, I think so. So time for the board examination before students start writing their exams. This additional time is provided for students to ready the question properly and draft a plan in their mind about how they will solve the paper correctly without getting panicked. So students must utilize these 15 minutes. These 15 minutes are very important. You must have to utilize your 15 minutes very carefully to make a strategy for writing their exams smoothly and correctly. So ये 15 मिनट जो हैं वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इन 15 मिनट में आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को समझना होता है, क्वेश्चन को पढ़ना होता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा. तो 15 मिनट में ये पूरा आपको क्वेश्चन पेपर को देखना होता है, इसलिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं. तो आपको उसका राइट यूज़ करना है. आपको पूरा क्वेश्चंस को समझना है, कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, नहीं आ रहा, उस हिसाब से आपको एक ड्राफ्ट बनाना है. आप अपने माइंड में एक ड्राफ्ट बना लें कि आप अपना पेपर कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन सा क्वेश्चन पहले आप अटैम्प्ट करेंगे. तो इस वजह से ये 15 मिनट इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए अकॉर्डिंग टू मी. सो सेकंड पॉइंट है कि आपको यू हैव टू सी द प्रायोरिटी. List out the questions which you are more confident about. There's no need to write the answer in the same order.
in the question paper. Firstly, write those answers which you know correctly. This will help you to gain confidence and will also help you spare enough time to think about the answers to other questions which are a bit below in your mind. सो सेकंड पॉइंट में आपको ये है कि आपको देखना होता है कि कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे। जिस क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंट है कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो आप पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 उसी ऑर्डर में आप करें 1 2 3 4, नहीं। आप बीच में से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, पर आपको नंबर शो करना होता है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। So you have to see the priority while doing paper. Third point, write a brief to the point answers. Read a question carefully and understand the sense of question. Try to limit your answers to the requirement and avoid writing huge paragraphs. This point is very important. आपको लिखना वो होता है जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या हो रहा है, आपको वो देखना है कि क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको अपना आंसर लिखना है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना, टू द पॉइंट आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन डिफाइन फोर्स, देन you are asked to write the definition of force, not that its causes or effects, no, which most of the students write in order to make their answers lengthier, as they believe longer the answer the more it will score, but it's absolutely wrong, as the examiner only looks for valid explanations but not the stories. तो आपको जो क्वेश्चन आपको दिया गया, आपको टू द पॉइंट आंसर अपना लिखना है। जैसे फोर्स का क्वेश्चन है, डिफाइन फोर्स, तो आपको वही फोर्स को डिफाइन करना है बस। आपको उसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना है कि फोर्सेस की कॉजेस क्या होती हैं, फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं, नो। आपको लेंथी नहीं लिखना, आपको टू द पॉइंट आंसर करना है बोर्ड के एग्जाम्स में। नाउ द फोर्थ पॉइंट, चूज क्वेश्चंस वाइजली. Usually some questions in the paper are provided with internal choices. The student has to select any one of those choices. Is that students often decide or instinct which question to attempt, and later they regret not choosing the other question which they know better. This happens. आपको क्वेश्चन को वाइजली चूज़ करना है, चूज़ क्वेश्चन वाइजली। आपको ये नहीं करना कि पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना है, फिर आप बाद में सोचते कि नहीं क्वेश्चन नंबर 2 मुझे नहीं अटैम्प्ट करना, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करूँगा। तो आपको एक ही क्वेश्चन को अपना टारगेट करना है, और टाइम ज़्यादा नहीं होता तो अपना टाइम भी मैनेज करना है। तो इस वजह से आप ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो उसका माइंड में ना रखें। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है आप वही क्वेश्चन करें, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ये टाइम इशू होता है, बच्चों के पास टाइम नहीं बचता लास्ट में। तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है पहले आप वो अटैम्प्ट करें। But when it comes to you to choose the question, you want to attempt give a careful reading to each question at least twice, and then create a mental picture of what you have to write in each case. This way you will be able to evaluate your knowledge about the particular question and also help you clear away any doubts. तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें, ताकि क्वेश्चन आपको मेंटली आप क्वेश्चन को समझ सकें, और फिर आप अपने माइंड में उस क्वेश्चन का ड्राफ्ट बनाएं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन आ रहा है उसी क्वेश्चन पे अपना माइंड यूज़ करें और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. After this point, another point, that is attempt all the questions. Read the question very carefully, reread the question, try to understand the genre of question, what it demands. If you know the answer, write it. If you don't know, then use your brain and make a smart guess. सब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें।
कुछ क्वेश्चन आपको मिले हुए होते हैं कि चॉइस में छोड़ दें, वो भले आप चॉइस में छोड़ें, जो आ रहे हैं क्वेश्चन उनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। उनमें से भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप अपना माइंड यूज़ करें, स्मार्टली आप उसको हैंडल करें क्वेश्चन को। आप अपनी ओन वर्डिंग में भी उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, पर आपको कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से ईजिली आप कर सकते हैं। नाउ number 6 point, that is, don't decorate too much your answer sheet. Try to only use 2 color markers, not more than 2. सो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये इस पे फोकस करें कि आपका जो आंसर शीट है आपकी वो ज़्यादा डेकोरेट ना हो। डेकोरेट करें पर टू मच डेकोरेट ना करें बोर्ड के पेपर्स में। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नंबर 7 पॉइंट, दैट इज़ स्पेस आउट ईच वर्ड। अब जो भी वर्ड लिख रहे हैं उसमें स्पेस ज़रूर यूज़ करें, ताकि एग्ज़ामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको समझ में आए कि आपने लिखा क्या है। सो स्पेस आउट ईच वर्ड, मेक श्योर you are properly spaced out. Don't squeeze in 10 words in the same line. Examiner will find it difficult to read such overlapped words, so this may cause a fail in your grades. Try to write answers in point. Number 8 point, that is, use diagrams in your answers to make them more attractive. जब मैंने बोर्ड के पेपर अटैम्प्ट किए थे तो मैंने भी डायग्राम्स वगैरह ज़्यादा बनाई थी, तभी मेरा स्कोर अच्छा आया था। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी हेल्पफुल। डायग्राम्स आपको बनानी है। किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है, आपको कह रहा है कि डायग्राम बनाए, तो आपको उसमें डायग्राम ज़रूर शो करनी है। अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तो आप ज़रूर डायग्राम बनाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आपकी लास्ट पॉइंट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आपने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया है तो लास्ट में आपको अपनी पूरी आंसर शीट चेक करनी है। चेक योर आंसर शीट आफ्टर यू हैव completed the paper. Don't forget to check your answer sheet, and that if you have more time, then check it twice. Also make sure that you have written your roll number neatly and properly before handing over the sheet to the examiner. अगर आपके पास लास्ट में टाइम है तो ज़रूर आप अपनी आंसर शीट को चेक करें, 2 मरतबा चेक करें। अगर फिर भी टाइम आपके पास बचता है तो फिर भी आप उसको चेक करें। अपना रोल नंबर आपने उसमें प्रॉपर्ली लिखा है नहीं लिखा वो भी चेक करें आपका। क्योंकि विदाउट रोल नंबर तो फिर आपको फेल किया जाएगा, आपको एब्सेंट शो किया जाएगा। तो रोल नंबर इम्पोर्टेंट है, आप उसको चेक करें। रोल नंबर आपने लिखा है नहीं लिखा, उसमें अपनी सिग्नेचर की है नहीं की, तो ये सारा आपको देखना होता है। तो ये लास्ट में आप पूरा उसको चेक करें। These important techniques, if implemented properly while framing your answers, are sure to help you score the optimum marks in 2021, inshallah. These techniques will also help you complete your paper within time. Just give your best without being worried about the result. So these were few tips I have shared with you. ये मेरी टिप्स थी जो मैंने अब जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए थे तो मैंने इन टिप्स को फॉलो किया था। मेरे टीचर्स ने मुझे ये टिप्स बताई थी जो कि मैंने आज आपसे शेयर की है अपनी टिप्स। तो अगर आप इस टिप्स के ऊपर पूरा अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा बोर्ड का। डोंट वरी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।